Hello students, you're welcome to class 10th Geography chapter 5 and today's topic is wind power. India has great potential wind power. इंडिया में विंड पावर की ग्रेट पोटेंशियल है, संभावना है। और जो लार्जेस्ट जो विंड फार्म क्लस्टर है वो तमिलनाडु के नागरकोइल से मदुरई का जो क्षेत्र है यहाँ पर स्टेब्लिश है। तो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि जो लार्जेस्ट जो विंड फार्म क्लस्टर है वो कहाँ पर है, तो दैट इज़ तमिलनाडु, फ्रॉम तमिलनाडु में है और नागरकोइल से मदुरई तक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप इनमें भी इम्पोर्टेंट विंड फार्म्स जो है मिलते हैं। इसके अलावा नागरकोइल जो भी हमने पढ़ा था, नागरकोइल और जो जैसलमेर हैं ये भी वेल नोन क्षेत्र हैं जहाँ पर विंड एनर्जी का यूज़ किया जाता है। तो हम आइए बात करते हैं कि विंड एनर्जी आखिर जनरेट कैसे होती है। इस तरह के जो बड़े बड़े जो फ़ैन होते हैं वो लगाए जाते हैं, ठीक है। इनमें इनके पीछे लगी होती है एक इसकी साफट लगी होती है, साफट के साथ जुड़ा होता है जनरेटर, और जनरेटर से क्या होती है, जनरेटर मूवमेंट करता है। जनरेटर मूवमेंट करने से क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो है जैसलमेर का जो विंड फार्म है उसकी फिगर इसमें देख रहे हैं। इसी तरह की फिगर आप अपनी एनसीईआरटी में चेक कर सकते हैं, वो दे रखी है, इसमें नागरकोइल की दे रखी है। इसके अलावा नागरकोइल से मदुरई का जो एरिया हमने बताया तमिलनाडु में कुछ इस तरह से जो विंड क्लस्टर्स हैं वो बने हुए हैं। तो आइए हम जानते हैं इसी चीज़ को इंग्लिश में, एक बार फिर से हिंदी में बता देते हैं। जो विंड क्लस्टर्स होते हैं इनके जो बड़े बड़े जो फैंस होते हैं इनके साथ लगा होता है साफट होती है। साफ्ट जो है वो जुड़ी होती है, वो साफट जुड़ी होती है जनरेटर से, और जब ये फ़ैन मूवमेंट करते हैं साफट मूवमेंट करती है। साफट मूवमेंट करने के साथ साथ क्या है, जो जनरेटर मूवमेंट करता है, जनरेटर के मूवमेंट करने से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो आइए इसको हम इंग्लिश में समझते हैं एक वीडियो के थ्रू। How does a wind turbine work? You've probably seen a wind farm. But do you know how wind force is converted into electrical energy? We are going to show you how a wind turbine works. Each wind turbine has a wind vane at the top that indicates the wind direction. This allows the turbine to rotate on the tower and face the wind. The blades also rotate on their axis for maximum resistance. Wind force, that is, the kinetic energy contained in moving air currents, spins the blades. These are designed to fully capture its energy. They can be as long as 60 meters each and are made of very light and resistant materials for ease of movement. This is why they can produce energy even with very light winds, starting from about 11 kilometers per hour. With very strong winds, above 90 kilometers per hour, the blades are placed in the feathered position and the turbine stops spinning for safety reasons. The blades are attached to the wind turbine through the hub, which is coupled to the low-speed shaft. The low-speed shaft is given this name because it spins at the same speed of the blades, between 7 and 12 revolutions per minute. To produce electricity, it is necessary to increase the turning speed of the low-speed shaft. That is the mission of the gearbox, which raises the speed over 100 times and transfers it to the high-speed shaft. The high-speed shaft, that rotates at up to 1500 revolutions per minute, is connected to a generator. The generator converts the kinetic energy into electricity, a source of energy that is easier to transport and use. The electricity produced in the generator as direct current is conducted through the interior of the tower to the base. There, a converter transforms it into alternating current, which is the most commonly used kind, and a transformer raises the voltage for transport inside the wind farm. From each turbine, alternating current is sent to the substation through underground cables. Here, the voltage is increased again to feed it into the power grid and transport it to end consumers. This is how we use the wind to light cities, feed industries, schools or hospitals, or operate our household appliances in a clean and sustainable way.
तो अभी आपने वीडियो में देखा कि जो वेन फॉर्म्स होते हैं उनमें बड़े बड़े फैंस लगे होते हैं, तो उनकी जो ब्लेड्स होती हैं उन फैंस की, उनकी वो मूवमेंट करती हैं लाइट होने की वजह से। मूवमेंट इसके साथ वो जो फ़ैन होते हैं वो जुड़े होते हैं एक साफट के साथ जुड़े होते हैं, और जो साफट होती है उसके बाद वो जुड़ा होता है एक गियर बॉक्स के साथ जुड़ा होता है, और उस गियर बॉक्स के जुड़े होने के बाद वो जुड़ा होता है जनरेटर से, जिससे क्या होता है वो जनरेटर मूवमेंट करता है। जनरेटर के मूवमेंट होने से एनर्जी जो है क्रिएट होती है। अब हम पढ़ेंगे जियोथर्मल एनर्जी जो है किस तरह से वर्क करती है। तो जियोथर्मल जो एनर्जी है वो रेफर करते, जियो मीन्स होता अर्थ और थर्म मीन्स होता हीट, अर्थात अर्थ की जो इंटीरियर पार्ट की जो हीट होती है उसको यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जियोथर्मल जो एनर्जी है वो एग्जिस्ट होती है बिकॉज अर्थ जो होती है ग्रो प्रोग्रेसिवली हॉटर विद द इंक्रीजिंग डेप्थ। जैसे जैसे अर्थ की गहराई बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे क्या होता है, ये हीट जो है वो बढ़ती चली जाती है। उस हीट की वजह से, इंटर पार्ट की हीट की वजह से जो रॉक्स हैं या इंटर जो ग्राउंड और जो वाटर है वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, और जो बाहर निकलता है तो उसे क्या भाप निकलने लगती हैं, वो इतना गर्म होता है। तो उस गर्म भाप का उपयोग करते हुए जो उससे क्या चलाया जाता है, टरबाइंस को चलाया जाता है। उससे टरबाइंस मूव होती हैं उस गर्म भाप से, और टरबाइंस जुड़ी होती है किसके साथ, एक जनरेटर के साथ जुड़ी होती है, और इस तरह से जनरेटर जो है उससे चलता है। जनरेटर चलने से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जो जियोथर्मल जो ग्रेडियंट्स हैं वो काफ़ी हाई होते हैं, हाई टेम्परेचर वो पाया जाता है शैलो डेप्थ में। ग्राउंड वाटर जो होता है इन एरियाज़ का, वो वहाँ की जो हीट होती है उसको एब्जॉर्व कर लेता है, उसकी जो रॉक्स होती हैं वो इस हीट को एब्जॉर्व करती हैं, और इस तरह से अर्थ का जो वाटर है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। और जब अर्थ सरफेस पर आता है तो स्टीम में चेंज होता है, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इसको। और इस स्टीम को यूज़ करते हैं टरबाइंस को ड्राइव करने में और जनरेट करने में इलेक्ट्रिसिटी को। इंडिया में से हंड्रेड्स ऑफ स्प्रिंग्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन 2 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं या एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जो शुरू किए गए हैं इंडिया में जियोथर्मल एनर्जी के। एक तो है इसमें पार्वती वैली जो मणिकर्ण क्षेत्र में है हिमाचल प्रदेश में, और दूसरा जो जियोथर्मल एनर्जी प्लांट है वो पूगा वैली लद्दाख में है। जियोथर्मल एनर्जी जो प्लांट होता है कुछ इस तरह से दिखता है। ये जो आप रेड जो देख रहे हैं इसमें रेड रेड कलर के, इसमें एक साइड टरबाइंस होती है, टरबाइन जुड़ी होती है जनरेटर के साथ जुड़ी होती है। टरबाइंस मूव करती है किससे, इससे हॉट जो स्टीम आता है, कह सकते हैं गर्म जो भाप जो आती है, उस गर्म भाप की वजह से क्या टरबाइंस मूवमेंट करती हैं। टरबाइंस की मूव करने की वजह से फिर जनरेटर चलता है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है। इससे आप इस डायग्राम से ही समझ सकते हैं। नीचे हॉट वाटर है, हॉट वाटर से स्टीम बनी, उस स्टीम के बाद क्या है, उस स्टीम से आप नंबर 3 पहुँचे। 3 का मतलब टरबाइंस मूवमेंट हुई, टरबाइंस जुड़ा हुआ है जनरेटर से, जनरेटर चलने से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इसके बाद जो 4th पोजीशन पर आप देखेंगे, टरबाइन से जो स्टीम जो निकली, भाप निकली, वो ठंडी होकर के कहाँ पहुँची, एक ये कूलिंग जो टावर है वहाँ पर पहुँचती है, और कूलिंग टावर से इंजेक्शन वेल में पहुँचती है, और इंजेक्शन वेल से मतलब वापस जो है इसको ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स कर दिया जाता है। तो आइए इसे एक वीडियो के थ्रू हम देखते हैं। ये पूगा वैली जो लद्दाख में है उसका, जहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी प्लांट जो लगाया हुआ है उसका सीन है, काफ़ी बढ़िया सीनरी है। तो आइए अब अभी आपने हिंदी में समझा इसको, अब इंग्लिश में एक बार समझ लेते हैं कि जियोथर्मल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस की जाती है। Geothermal energy gives us a steady supply of electrical power with minimal environmental impact. Here is the basic process. Water in underground reservoirs is heated to high temperatures by magma. Production wells drilled up to 10,000 feet below the Earth's surface tap into this hot fluid. Under its own pressure, the fluid flows through these wells toward the surface. As it travels, the pressure lessens, causing a small amount to become steam. Together, the hot fluid and steam move through a surface pipeline to a wellhead separator, where the pressure is reduced. Here, most of the fluid vaporizes and flashes into high-pressure steam. Any fluid not flashed into steam moves to a standard pressure crystallizer to produce standard pressure steam. Remaining fluid
is then flashed at a lower pressure to create low-pressure steam. All steam created in the plant is sent to a turbine on site. The force of the steam spins the turbine's blades, which turns a shaft connected to an electrical generator. An electrical charge is created and directed to a transformer, where the voltage is increased and sent down power lines. Any fluids not flashed into steam return to the underground reservoir, where, in time, they will be reheated and reused. Geothermal energy, a simple, clean, and renewable energy source.